Very good morning to all of you. Welcome to Excellency IAS. Myself, Mayur Sagar. दोस्तों, we are conducting the Indian polity by M. Lakshmikant. That here we are going to complete this textbook in the 75 hours of the classroom. We have conducted the 3 classes through the 3 lectures that on historical background, that is chapter number 1. आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे. प्लीज दोज फ्रेंड्स हु हैड मिस्ड द क्लासेस, मिस्ड द वीडियो लेक्चर्स, प्लीज गो थ्रू दैट बिकॉज वी आर हियर conducting an consolidated and integrated form of the classroom where all will enable you to read the textbook. All the classes will enable you to understand the Indian polity by M. Lakshmikant. What are the sections you should read and how you should read? In the previous class that we have seen that constitutional development, that is starting from Regulating Act 73, how this centralization process started, and in the 1861 through the Indian Councils Act, how the process of decentralization started. और किस तरह से that 1947 में through Indian Independence Act 1947 भारत आजाद होता है and the two dominions that is India and Pakistan were created. So that was the class in the previous one. आज हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज टू द जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द जेनेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली efficiently accomplished the task to frame the constitution and submitted to the constitution on the day of November 1949. 26 जनवरी 1950, which is known as the date of commencement of the constitution, and the India becomes a republic. Okay, so let us understand about all the developments, and so let's begin our today's class. So दोस्तों, the संविधान बनने की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियली डिक्लेयर किया, ऑफिशियली डिमांडेड. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया थ्रू द अगस्ट ऑफर, एंड नवंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना. फर्स्ट पैराग्राफ में इसी जेनेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया है. इसके लिए एक टाइमलाइन मैं बता रहा हूं. यू शुड रीड विद द हेल्प ऑफ दैट. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. सो दिस इज कॉल्ड जेनेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The concept of the Constituent Assembly, the idea of the Constituent Assembly, it was first put forwarded by M.N. Roy, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं in the previous lecture, that in 1934 में M.N. Roy had put forwarded the idea of the Constituent Assembly. M.N. Roy कौन थे? That he was the pioneer of the communist movement in India, and second he advocates the radical democratism. ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. Now 1934 में that idea was put forwarded, and then the Indian National Congress 1935, that is 1935, officially demanded for a constituent assembly. That through the struggle period, it passes through on August offer, that is August 1940, that government of India accepted the demand for the constituent assembly. Then second world war का पीरियड चल रहा था, that is World War II. उसी पीरियड में with the development of the pressure, the world as well as national pressure, कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं. that like beginning from the Cripps missions, the Cripps proposals आता है. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो एक प्रपोजल लेके आते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फिर वेबल प्लान आता है. वेबल प्लान बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट
से रिलेटेड नहीं था. देन फाइनली द कैबिनेट मिशंस कैम. द कैबिनेट मिशंस, इट वाज ए हाई पावर्ड कमिटी जिसके 3 मेंबर्स थे. कौन कौन से? दैट पैथिक लॉरेंस, एविक अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स. ठीक है, ये कैबिनेट मिशंस में थे. कैबिनेट मिशंस को बोला जाता है इट इज द सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए प्रपोजल. सो कैबिनेट मिशन प्लान एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हाउ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी. इस कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. सो द कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू नवंबर 1946 में दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है दैट इज 9 दिसंबर 1946 को होती है. इसमें ये डेट्स है, इसको आप याद रखिएगा, दैट 2 दिन के बाद हुआ था. दैट इज 9 दिसंबर 1946, दैट इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस दिन को क्या किया गया था, दैट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दैट ही इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट. 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, he elected as the president. H.C. Mukherjee, that he was elected as vice president, and Sir B.N. Rao, that he was appointed as the constitutional advisor. ये important fact है, you should read, keep in mind. Rajendra Prasad, that president, H.C. Mukherjee, vice president, and Sir B.N. Rao as a constitutional advisor. Okay, gradually और भी मीटिंग हुई. 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, दैट दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसको प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज एज वेल एज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस अभी मॉडिफाइड फॉर्म में इट इज नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी ऑब्जेक्टिव, तो ये कब मूव किया गया था, दैट 13 दिसंबर 1946 को. ठीक है, 26 नवंबर 1950 दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने काम को पूरा किया एंड सारे मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस संविधान को अपना साइन किया, दैट इज इट वाज असेंटेड. देन 24 जनवरी 1950 को संविधान जो सभा वो एक बार फिर बैठी और इस समय 3 काम किए गए थे. हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे भी क्या क्या किए गए. फर्स्ट, राजेंद्र प्रसाद, दैट ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथेम, ये 3 काम किए गए थे 24 जनवरी 1950 को. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द जेनेसिस एंड द टाइम फ्रेम फॉर ऑल द डेवलपमेंट. 1934, 1950, then Augusta offer, then World War का period, then come the Cripps missions, Webel plan, then Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan के बेसिस पे ही Constituent Assembly का फ्रेमवर्क तैयार किया गया. इस Constituent Assembly में कितने मेंबर्स थे, दैट 389 मेंबर्स. एंड इसको किस तरह से डिवाइड किया गया था, दैट इज जो ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, उसमें 2 तरह के कंपोजिशंस थे, दैट इज British provinces and princely states. And British provinces, that is governors provinces, जो 11 थे, and the chief commissioner provinces जो कि 4 थे. The 296 were allocated here and 93 seats किनको दिया गया, that is princely states को. ठीक है, और जो governors provinces से जो भी members थे, they would come through the elections. ऑन 3 मेजर कम्युनिटी में इनको डिवाइड किया गया था. इसको याद रखिएगा, दिस इज अ ट्रिक, दैट इज GSM. ठीक है, दैट इज जनरल, सिख एंड मुस्लिम्स. सो जो सिख और मुस्लिम नहीं थे उन सबको किस में रखा गया था, जनरल्स को. द एलोकेशन ऑफ सीट्स किस बेसिस पे दिया गया था, कॉमन पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, और इलेक्शंस जो गवर्नर्स प्रोविंसेस, दैट इज ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो आएंगे, दे कम थ्रू election, that is elected members होंगे. And system was proportional representation by means of single transferable vote, that is proportional representation by means of single transferable vote. This was the system, याद रखिएगा, proportional representation by means of single transferable vote. But जो princely states के थे वो they come through nominations. ठीक है, and who will nominate,
that is head of the princely state, head of the state. So the Constituent Assembly, it was a nominated plus elected body. ये दोनों याद रखिएगा. But when that Indian National Congress demanded 1935 में, तो उन्होंने क्या डिमांड रखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो दैट शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ये पॉइंट याद रखिएगा. बट एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दैट वाज पार्शियली नॉमिनेटेड, पार्शियली इलेक्टेड एंड इट वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यू कैन से. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द जेनेसिस. नाउ लेट अस रीड द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड द अदर एस्पेक्ट. तो दिस इज द टेक्स्ट, यू कैन रीड हियर. जो हमने बताया इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है that 1934 को idea was put forwarded, then 35 that Indian National Congress demanded, और उनका on the basis of क्या, universal adult franchise. This is important fact, you must remember. Then जो Constituent Assembly का idea था वो accept कब किया गया, that is through August offer. It is a very important fact. Then Cripps come and Cripps provided that जो independent constitution to be adopted after the World War, मतलब World War II का पीरियड चल रहा था. ठीक है. World War II कब था, 1939 to 1944. ठीक है. एंड आफ्टर द वर्ल्ड वार II एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, तो वहां भी इलेक्शंस होना था, और इलेक्शंस के बाद वहां पर कौन सी पार्टी आती है, लेबर पार्टी कम्स इनटू द पिक्चर. लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, क्लेमेंट एटली. ठीक है. जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एटली का अनाउंसमेंट आया था कि दैट इज जून 1948 में इंडिया विल गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट. सो क्लेमेंट एटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन. सो ही आल्सो एक्सेलरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द फ्रीडम प्रोसेस इन इंडिया. ठीक है. कैबिनेट मिशंस प्लान आए. कैबिनेट एक हाई पावर्ड कमेटी थी. कैबिनेट मिशंस में कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस. आप याद रखेंगे ये, यू शुड नो इट आल्सो फ्रॉम द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक से आप पढ़ें इसको. अब लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोजिशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी मेंबर्स, 389 मेंबर्स. ठीक है. The partially nominated and partially elected. The 389 members is divided into 2 groups, that is princely states जहां पर 93 सीट्स दिए गए थे and 296 सीट्स किसको दिए गए थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को. जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के 2 पार्ट थे, that is गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कितने थे, 4 एंड गवर्नर्स प्रोविंसेस थे 11. 292 सीट्स इनको दिया गया था एंड 4 सीट्स वर गिवन टू चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. द गवर्नर्स प्रोविंसेस में जितने भी मेंबर्स थे उनको 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया था, दैट इज GSM, जनरल, सिख एंड मुस्लिम्स. तो दिस पॉइंट नंबर 2, इट से दैट द प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के जो भी मेंबर्स थे उनको सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दिया जाएगा, और जनरली क्या रेशियो रखा गया था, 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन फॉर 10 लाख. देन उनको क्लासिफाई किया जाएगा 3 ग्रुप में, दैट इज GSM, ऑलरेडी मैं बता चुका. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द कम्युनिटी एंड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरह सिलेक्शन होगा. एंड जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे एंड हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विल नॉमिनेट देम. ठीक है. सो इन दिस वे द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, that is 296 seats, were held in the July-August 1946 को. that elections हुए, और इस इलेक्शंस में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो 93 सीट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था, याद रखेंगे. तो 296 के लिए इलेक्शंस हुआ, उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती, 73 सीट्स वॉन बाय मुस्लिम लीग एंड कुछ स्मॉल इंडिपेंडेंट ग्रुप थे जिन्होंने 15 सीट जीता था. तो इसको आप ऐसे याद रखना, IMI, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे जिन्होंने 15 सीट्स जीता था. ठीक है. और प्रिंसली स्टेट्स तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे. सो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, नहीं होंगे. व्हाई? बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एंड दे डिड नॉट जॉइन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. सो लेट्स सी फर्दर. सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
it had been formed. Constituent Assembly, you can see the picture, the most respectable and the reverend peoples of the Constituent Assembly. ठीक है, the Constituent Assembly started its functioning, or the first date is the 9 December 1946 when the first meeting of the Constituent Assembly was held. 3 डेट्स है, आप याद रखेंगे, that is December 9, 2 दिन के बाद, that is December 11 and the December 13. ठीक है, all in 1946 and 1946. These are the 3 important dates. Why? That is 9th December को क्या हुआ? That is the first meeting. ठीक है, 2 दिन के बाद इस फर्स्ट मीटिंग में क्या किया गया? That Dr. Sachidanand Sinha, that he was elected as the president, or you can call the temporary president that of the Constituent Assembly, Dr. Sachidanand Sinha. ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को इलेक्ट किया गया, एंड दैट फॉलोइंग द फ्रेंच द प्रिंसिपल, और यू कैन से द फ्रेंच प्रेसिडेंट. 11 दिसंबर को क्या किया गया? 11 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट चीज हुआ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ही was elected as the president, the H.C. Mukherjee as the vice president, and third one, V.T. Krishnamachari is also that the vice president, and most important, Sir B.N. Rao. ठीक है, ये याद रखिएगा, Sir B.N. Rao, he was appointed as the constitutional advisor. ये important है prelims के point of view से. ओके, तो 3 फैक्ट याद रखिएगा. 11 दिसंबर the president was elected, then vice president was elected, and constitutional advisor was appointed, who was Sir B.N. Rao. Then 13th December, Pandit Jawaharlal Nehru, who moved historic objective resolutions. Objective resolutions को मूव कराया गया. Objective resolutions क्या था? Objective resolution basically provide the philosophy and structure of the constitution. ठीक है, in entire course you see objective resolution will save the course of the development of constitution. जब भी हम लोग constitution की बात करते हैं, so subsequently हम लोग पढ़ेंगे that constitution what is structure we can study under 3 part: structural part, philosophical part and the political part. Structural part उसको बोलते हैं that is derived from the Government of India Act 1935. Philosophical part जिसमें कि fundamental rights as well as the DPSP, that is the philosophical part, and the political part जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट हैं: स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल. सो एवरीथिंग, एंड ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से अब गाइडेड होगा. सो 13th December 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वाज मूव्ड फॉरवर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, and 22 January 1947 next year this Constituent Assembly accepted unanimously this objective resolution. ठीक है, objective resolution को accept कर लिया गया. So this was some of the important development. 9th December first meeting. 11 दिसंबर और 9 दिसंबर को क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट. 11 दिसंबर को क्या हुआ? दैट इज राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट, के H.C. Mukherjee as the vice president, Sir B.N. Rao as the constitutional advisor. Then 13th December objective resolutions moved by Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है, let's see further. So दोस्तों, आगे हम लोग what we see that objective resolutions जो that is on 22 January 1947 that it was accepted by the Constituent Assembly. 3rd June, that is 3rd June 1947 when the Mountbatten Plan come. Mountbatten Plan क्या था? That it was the partition plan. India and Pakistan, the 2 sovereign dominion will be going to created. So Mountbatten Plan के through, and on the basis of Mountbatten Plan, Indian Independence Act 1947 it was introduced and it was enacted. So Indian Independence Act 1947 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस करता है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या इंपॉर्टेंट चीजें चेंज करता है? वी कैन अंडरस्टैंड बाय दीज पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बॉडी होगी? फुल्ली सोवरेन बॉडी. ठीक है, फुल्ली सोवरेन मीन्स
जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस, दैट constituent assembly would be the sole body, sovereign body, and it can frame constitution according to it like and according to it please. ठीक है, मतलब जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, तो एक सोवरेन बॉडी होगी. दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी. द लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स इट विल ऑल्सो फ्रेम, इट विल ऑल्सो लेजिस्लेट ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री. सो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, मतलब एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी. ठीक है, मिनी पार्लियामेंट. थर्ड चेंजेस क्या किया गया था, दैट मुस्लिम लीग मेंबर्स हु इज हेलिंग फ्रॉम द पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडिया. एक्चुअली 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग सारे मेंबर्स थे. बट नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान. तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स अब नाउ बिकम, दे वांट टू जॉइन द पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो लोग चले जाएंगे, दैट दे विड्रू देयर एलिजेंस फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस तरह से स्ट्रेंथ घट जाएगा एंड 299 बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और 299 इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए. व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस? दैट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट विल act as a sovereign body to frame the constitution accordingly it pleased. Second, it act as a legislative body, means it act as a mini parliament. ठीक है, it act as a mini parliament to legislate the ordinary law of the land. Third, those members of the Muslim League who that become and who joined the Pakistan Dominion, they withdrew their allegiance from the Constituent Assembly, or in this way, the strength of the Constituent Assembly it reduced to 299. ये 3 important changes किए गए. I think you should remember these facts. ठीक है. संविधान बनाने के साथ साथ Constituent Assembly एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी फाउंडिंग स्टोन रखते चली जाती है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अलावा और भी कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट सम अदर फंक्शंस वर आल्सो गिवन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या क्या? दैट नाउ कुछ ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. यू शुड कीप दीज फैक्ट्स इन माइंड. दैट कुछ डेट्स हैं, लाइक 22 जुलाई 1947 that it adopted the national flag. This is the first function, that is 22nd July 1947, and 24th January 1950, that is 24 January 1950. It is important date. In this date, Dr. Rajendra Prasad that he was elected as the first president of India. That national song and national anthem, these are also adopted on 24th January 1950. Commonwealth country में India should become the member. So all these, the powers were given to Constituent Assembly. Constituent Assembly सारे sovereign decisions लेता था, the legislative decisions लेता था, और कुछ इस तरह से important decisions लिए गए. Constituent Assembly total 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करती है, जिसमें 11 सेशंस इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, इन टोटल 11 सेशंस वर देयर. अराउंड, दीज आर द सर्टेन फैक्ट्स यू शुड कीप. अराउंड 60 कंट्रीज से ज्यादा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को दे स्टडीड एंड दे टुक आउट द बेस्ट आउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस. दे इनकॉर्पोरेट ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू नीड्स and suitability to the Indian circumstances. So we can call it the best piece of legislation the Constituent Assembly had enacted, have devised. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में ये एक ह्यूमंगस टास्क था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पूरे ऑल इंडिया के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, एक फेडरल सेटअप, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक जिसमें कि यूनिटरी, कभी कभी इसको क्वासाई फेडरल भी बोलते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक कॉमन सिटीजनरी स्ट्रक्चर, ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक
संविधान, it was a, you can call it humongous task. It was a bulky document. So on 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल, 365 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स थे. So it was a very big and bulky document. It is the world lengthiest written constitution at that time. So it was a challenging task, but it was successfully accomplished by our the founding fathers. Okay. Now, इस पूरे टास्क को करने के लिए there were certain some committees and some subcommittees. These committees, ये important है that certain sometime they can directly ask the question from here. So the important committee का list है. You should remember all these committees. That कुछ important committees थे like Union Powers Committee by Chairman was Pandit Jawaharlal Nehru, Union Constitution Committee and Provincial Constitution Committee, और एक States Committee. यहीं पर आप कंफ्यूज कभी कभी करेंगे. फ्रेंड्स, States Committee के जो चेयरमैन थे he was पंडित जवाहरलाल नेहरू, बट Provincial Constitution Committee के चेयरमैन थे सरदार पटेल. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, इसमें बहुत सारे कमिटीज थी, कुछ सब कमिटीज थी जिन्होंने एक साथ मिलके उस पूरे प्रोसेस को अकम्प्लिश किया. ठीक है, यू कैन रीड ऑल एंड कीप ऑल दीज फैक्ट्स. They are the some members of the drafting committee. We will see subsequently that drafting committee was solely given the task to frame the constitution. So it is called the most important committee out of all the committees. So let's see about the drafting committee. Let's see some members of the drafting committee. Women, some that male members are there. So Constituent Assembly at some time under the subject of criticism. We will see that one. Drafting committee, these are the members of the drafting committee. इसके भी आप नाम याद रखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हु इज द चेयरमैन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ड्राफ्टिंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड दैट ऑन 29 अगस्त 1947. ठीक है, दैट इट वाज द कमिटी हु वाज गिवन द टास्क टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग कमिटी काफी इफिशिएंटली काम करती है और 2 ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार करती है. पहला when that it was the India got independence, आप ऐसे याद रखना, that is 15th August 1947. ठीक है, that India got independence, and after that drafting committee was constituted on 29th August 1947. So drafting committee, it was constituted on 29th August 1947. The first draft of the constitution came that in February 1948. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट आया, एंड फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद that it was kept before the people to elicit the opinions, and after the opinion criticism, second draft was prepared in the October 1948. How efficiently they have done that. October 1948 was second draft of the constitution was prepared. So finally Ambedkar introduced the 4 नवंबर 1948, that is फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. 26 नवंबर 1949 को सारे मेंबर्स ने साइन किया और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, दैट वाज ए ग्रेट लॉयर, पॉलिटिशियंस, विजनरी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. दैट ही वाज आल्सो नोन एज द मॉडर्न मनु. ठीक है, दैट 2 चीज याद रखना. द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर डॉक्टर पंडित नेहरू को बोला जाता है. ओके, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मनु, दैट ही वाज भीमराव अंबेडकर. सो अंबेडकर जी had piloted under his leadership the drafting committee piloted the entire process of the constitution making, and they have successfully done it. Okay. Now if we talk about the enforcement of the constitution, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, देन 26 नवंबर 1949, ठीक है, the date when the Constituent Assembly that given their assent to this constitution,
इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पास किया गया, ड्यूली इनेक्टेड। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे दैट इज डिट कम्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, यू कैन कॉल इट मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इनेक्ट किया गया। इसलिए 26 जनवरी एक हिस्टोरिक डेट था। अभी हम लोग देखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग इंडिया में रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बट इट इज रिटन हियर, इट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट में। व्हाई दिस डेट इज चूजन? 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? रिकॉल, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर वाज लाहौर सेशन ऑफ 1929। लाहौर सेशन में कौन चेयरमैन थे? दैट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जी ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था। ठीक है, एंड 30 जनवरी दैट 1930 इट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। ट्राई कलर फहराया गया, रावी नदी के किनारे पे दैट तिरंगा फहराया गया था। दैट 1929 दैट इन दिस सेशन दैट पंडित नेहरू दैट ही say that monarchy in any form is not acceptable to the India. It cannot be justified here, and he is a true devote of the socialism. तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लोगों के सामने रखा था। So on the basis of this pretext, the 26 जनवरी 1950 was adopted for the commencement of the constitution, और आज भी हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। That is, it's a historical day. It is a proud day for moment for every Indians. ठीक है? On this date, due to its commencement, now India become a republic. We will see that in the salient features of constitution, republic का क्या meaning होता है. But for the time being, you must remember that this is the date for commencement of the constitution. इस पूरे process में जो कि इंडिया की एक proud journey थी, still The Constituent Assembly comes under certain criticism. कुछ criticism भी आता है, इसमें से कुछ important facts है। दोस्तों, for the prelims you should not prepare, इस aspect को आप नहीं पढ़ेंगे, but let's see only for the help of better understanding. Mains के लिए you should prepare. It is not a representative body. Why it is not a representative body? Some say it not a representative body. So some critics say that Constituent Assembly not a sovereign body. Some say it is dominated by one party, that is Congress. It is dominated by Hindu. It is a lawyer politicians dominations. But apart from all the criticism, that the Constituent Assembly did a splendid job. Representative body की बात करें, so Constituent Assembly limited franchise पे किया गया था. It is constituted. कुछ लोग nominated थे, कुछ elected थे. But look at the very beauty of the structure of Constituent Assembly, that उस समय जितने भी almost every caste, color, religion, ethnicity, community के people का representation था. Even the male, female, मतलब gender representation था, gender parity था. We can call it that almost all the important personality of that time were incorporated, they were represented in Constituent Assembly except the two important M.K. गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आप याद रखेंगे, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें रिप्रेजेंटेड थे। सोवरेन बॉडी की बात करेंगे, दैट सोवरेन बॉडी सिंस अगस्त ऑफर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग बना, इसलिए बोला जाता है कि यह सोवरेन बॉडी नहीं था। रादर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसको सोवरेन फंक्शंस का पावर देता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सोवरेन फंक्शन के अपने प्लीज अपने विशेष के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है। सोवरेन नॉट इन द आइडियल सेंस इट इज डिफाइंड हियर। क्रिटिक्स से दैट ये कैबिनेट मिशंस के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए सोवरेन बॉडी के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। बट माय डियर फ्रेंड, इट इज सोवरेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां इसे कोई गाइड नहीं किया गया था। ओके, इट हैड maintained the integrity of sovereignty here. Dominated by Congress? Yes, at that moment, that Indian national movement, we found that Indian National Congress, and under the leadership of Mahatma Gandhi, it becomes a mass movement. It becomes the true representative of India,
and one point of the time India means Indian National Congress. So उसी मेंबर्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट थे, बट ऐसा नहीं था, और भी लोगों का पार्टिसिपेशन था. डोमिनेटेड बाय हिंदूज टू सर्टेन एक्सटेंट, ये सटायर था. लॉयर पॉलिटिशियंस डोमिनियंस, इट इज वन एस्पेक्ट. लॉयर पॉलिटिशियंस फाउंडिंग मेंबर्स थे, दैट इज वाई दैट जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, इट वाज सो फ्यूचरिस्टिक इन द नेचर. द टर्मिनोलॉजी रादर कुछ little bit, some jargons were sometimes used, but if one study it many times, that it can easily be comprehended. But most important beauty of constitution is that the articles, the sections, the provisions are so scientifically, so systematically organized that one can easily comprehend and one can easily understand the ethos, the values and message of the constitution. So मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस बिन अकम्प्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जेनेसिस आप याद रखना इंपॉर्टेंट. देन सम इंपॉर्टेंट कमिटीज याद रखना, उसमें से व्हाट आई टोल्ड यू दैट यूनियन, द कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स, द स्टेट्स कमिटी, दे आर द थ्री इंपॉर्टेंट जहां पर आप कंफ्यूज करेंगे. Some committees were there also. Then also you read about the composition of the Constituent Assembly. That is important for your prelims point of view. And apart from that, rest all what I dictated, read the book accordingly. अब क्लासरूम के साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें, ये आपको इनेबल करेगा. और जिन सेक्शंस को हाईलाइट किया गया है, you should read all those. So this is all about the today's class. That if you missed the previous, please go through that. It will help you to better comprehend the subsequent lectures. So we will see the features of the constitution in the next class. And till this point, this is trying to making the building block to understand the textbook. So stay safe, stay healthy, keep reading, and again meet with the next topic. So take care. Bye-bye. Have a good day.